Welcome to Still Learning. In this video, I will provide a detailed explanation of the law of variable proportion. We will explore its various stages and the underlying assumptions that support this economic principle. By breaking down each component, I aim to give you a comprehensive understanding of how this law operates and why it is important. Let's begin. The law of variable proportions states that as more units of a variable factor like labor are added to a fixed factor like land, the total product output will initially increase at a faster rate but eventually it will grow at a slower diminishing rate. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि जब एक फिक्स्ड फैक्टर जैसे लैंड के साथ ज़्यादा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर जैसे लेबर ऐड किए जाते हैं तो टोटल प्रोडक्ट आउटपुट पहले फास्टर रेट से इंक्रीज होता है लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ने लगता है और डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ता है. इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट द एडिशनल आउटपुट फ्रॉम वन मोर यूनिट ऑफ इनपुट एंड एवरेज प्रोडक्ट output per unit of input both will increase at first. However, after a certain point, as more units are added, the marginal product will start to decrease, followed by a decline in the average product. This reflects diminishing efficiency as the variable input increases beyond a certain limit. मार्जिनल प्रोडक्ट एक और यूनिट ऑफ इनपुट से एडिशनल आउटपुट और एवरेज प्रोडक्ट आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट दोनों पहले बढ़ते हैं लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब और यूनिट्स ऐड किए जाते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट कम होने लगता है और एवरेज प्रोडक्ट भी गिरने लगता है. ये डिमिनिशिंग एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है जब वेरिएबल इनपुट एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट, मूविंग फर्दर टू द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. The law of variable proportion states as more and more units of a variable factor are combined with a fixed factor, the total output initially increases at an increasing rate, then at a diminishing rate and eventually it may decline. Law of variable proportion state करता है कि जब ज़्यादा और ज़्यादा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को फिक्स्ड फैक्टर के साथ कंबाइन किया जाता है तो टोटल आउटपुट पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है और इवेंचुअली ये डिक्लाइन भी कर सकता है. In simpler terms, it explains how output changes as you add more of one input like labor to a fixed input like land or machinery, showing three phases: increasing returns, diminishing returns and negative returns. Simple terms में ये बताता है कि जब आप एक फिक्स्ड इनपुट जैसे लैंड या मशीनरी के साथ एक इनपुट जैसे लेबर को ज़्यादा ऐड करते हैं तो आउटपुट तीन फेजेस में चेंज होता है: इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स. नेक्स्ट, assumptions of the law. The assumptions of the law of variable proportion are: it applies to the short run where one factor is fixed and the other is variable. ये शॉर्ट रन के लिए एप्लीकेबल होता है जहाँ एक फैक्टर फिक्स्ड होता है और दूसरा वेरिएबल होता है. द वेरिएबल फैक्टर इज होमोजेनस मीनिंग ऑल यूनिट्स आर ऑफ इक्वल क्वालिटी. वेरिएबल फैक्टर होमोजेनस होता है मतलब सब यूनिट्स एक ही क्वालिटी के होते हैं. टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस. टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहती है. The variable factor is divisible and can be added in smaller units. Variable factor divisible होता है और छोटे यूनिट्स में ऐड किया जा सकता है. The fixed factor remains unchanged in quantity and quality. Fixed factor quantity और quality में unchanged रहता है. Next, these are the three stages of production: increasing return stage, diminishing returns stage, negative returns stage. We will explore each. So the first stage is increasing returns. Total product output increases at an increasing rate as more units of a variable factor are added. Increasing returns में क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट आउटपुट जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर एक और यूनिट्स ऐड किए जाते हैं टोटल प्रोडक्ट फास्टर रेट से इंक्रीज होता है. मार्जिनल प्रोडक्ट एडिशनल आउटपुट पर यूनिट इज राइजिंग. मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स एडिशनल आउटपुट पर यूनिट बढ़ रहा है. मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट बोथ are increasing, indicating better utilization of the fixed factor. मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों बढ़ रहे हैं जो फिक्स्ड फैक्टर का बेहतर यूटिलाइजेशन दिखाता है. नेक्स्ट इज डिमिनिशिंग रिटर्न. टोटल प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू इंक्रीज बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. टोटल प्रोडक्ट बढ़ता रहता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से. मार्जिनल प्रोडक्ट बिगेंस टू डिक्लाइन बट रिमेन पॉजिटिव. मार्जिनल प्रोडक्ट कम होने लगता है लेकिन पॉजिटिव रहता है. एवरेज प्रोडक्ट ऑल्सो स्टार्ट्स टू डिक्लाइन बट टोटल आउटपुट इज स्टिल ग्रोइंग. एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू होता है लेकिन टोटल आउटपुट अब भी इंक्रीज हो रहा होता है. नेक्स्ट, नेगेटिव रिटर्न्स. टोटल प्रोडक्ट बिगेंस टू डिक्रीज एज टू मच ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज एडेड. टोटल प्रोडक्ट कम होने लगता है जब वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है. मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव मीनिंग एडिशनल इनपुट रिड्यूसेस आउटपुट. मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है मतलब एडिशनल इनपुट और आउटपुट को रिड्यूस करता है. एवरेज प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू फॉल एंड द प्रोडक्शन प्रोसेस बिकम्स इनएफिशिएंट.
एवरेज प्रोडक्ट लगातार गिरता रहता है और प्रोडक्शन प्रोसेस इनसफिशिएंट हो जाता है. Moving further, we will break down the behavior of the law of variable proportion by examining the total product, average product and marginal product one by one. So the first is total product, TP curve upper panel. Look at the diagram. TP, total product, increases at an increasing rate. Point M, TP increases at a decreasing rate. This is where the MP curve reaches its maximum. Point T, total product reaches its maximum. Beyond this, TP starts to decline. सो टोटल प्रोडक्ट राइजेज इनिशियली, पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है. पॉइंट एम, टोटल प्रोडक्ट अब डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है और ये वो पॉइंट है जहां एमपी कर्व अपने मैक्सिमम पर होता है. पॉइंट टी, टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पर पहुंचता है, इसके बाद टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी कर्व लोअर पैनल राइजेज इनिशियली, एमपी इंक्रीजेज एज मोर लेबर इज एडेड. Point M, marginal product is at its maximum. Beyond this, MP starts to decline and eventually becomes negative. Point L3, MP is 0 corresponding to point T on the TP curve where total product as it is at its peak. So total product in the case of marginal product, MP rises initially means MP पहले बढ़ता है जब और लेबर ऐड किया जाता है. पॉइंट एम, मार्जिनल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पर होता है, इसके बाद एमपी डिक्लाइन होना शुरू होता है और इवेंचुअली नेगेटिव हो जाता है. पॉइंट L3, मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है जो टीपी कर्व के पॉइंट टी से करस्पॉन्ड करता है जहां टोटल प्रोडक्ट अपने पीक पर होता है. नेक्स्ट इज एवरेज प्रोडक्ट, एपी कर्व लोअर पैनल राइजेज इनिशियली, एपी इंक्रीजेज एज लेबर इनपुट rises. After point M, AP starts to decline but is less steep than marginal product. Rises initially, average product पहले बढ़ता है जब लेबर इनपुट इंक्रीज होता है. आफ्टर पॉइंट M, एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू होता है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ये डिक्लाइन कम स्टीप होता है. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन location on the top of the TP curve, it is where the curve changes from increasing at an increasing rate to increasing at a decreasing rate. Significance, this point corresponds to the peak of the MP curve, marking the transition from increasing to decreasing marginal returns. Point of inflection, TP कर्व पर ये वो पॉइंट है जहां कर्व इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करने से डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करने लगता है. सिग्निफिकेंस, ये पॉइंट मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व के पीक से करस्पॉन्ड करता है और मार्जिनल रिटर्न्स के इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग फेज में ट्रांजिशन को मार्क करता है. I hope you now have a bit understanding of this topic. If you have any questions or need further clarification, feel free to drop your queries in the comments.